آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 9 پہ ہم بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یا پر ہے پیش، اور پیش کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ضمہ، ٹھیک ہے، ضمہ۔ یا پر آگی پیش یعنی ضمہ سائن۔ اس کے کتنے کاؤنٹس ہوتے ہیں اب آپ بتائیں؟ اگر آپ نے پریویس ویڈیوز واچ کی ہیں 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، ایک حرکت تک صرف یا کو لمبا کریں گے، یعنی یا پیش یو، دیٹس اٹ۔ خو پہ دیکھیے انہوں نے کھڑا زبر لگا دی ہے اور زبر بھی لگا دی۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کھڑا زبر کنسیڈر کریں گی، ٹھیک ہے۔ خو 2 کاؤنٹس، خو۔ اب یا کو جوائن کریں، یو خو، یو کو آپ نے لمبا نہیں کرنا زیادہ، خو پہ آپ کا سٹریس جائے گا، خو کو لمبا کریں گے، یو خو۔ دال کے نیچے صرف زیر ہے، دی، دی، یو خو دی، 1 کاؤنٹ۔ پھر سے آئیں یا پہ 1 کاؤنٹ، دال پہ 1 کاؤنٹ، خو پہ 2 کاؤنٹس، یو خو دی۔ عین پہ پیش ہے اور یہ واو ساکن آ گیا۔ لاسٹ ویڈیو میں نے مدہ لیٹر کا کانسیپٹ ایکسپلین کیا ہے کہ کون سا واو مدہ لیٹر ہوتا ہے جس واو سے پہلے پیش آتی ہے۔ سارے واو مدہ لیٹرز نہیں ہوتے۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش آ جاتی ہے اس واو کو مدہ لیٹر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ عین کنیکٹڈ ہے واو مدہ لیٹر کے ساتھ، اسی لیے عین کے 2 کاؤنٹس ہوں گے، یعنی عین کو 2 حرکت تک لمبا پڑا جائے گا۔ دیکھیے عو، یخادعو۔ نون پہ زبر ہے، اس کو دینا تو 1 کاؤنٹ چاہیے نہ، لیکن یہاں پہ شدہ کا سائن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم میں ہم نون کو لام سے جوائن کریں گے، نل، نل۔ اور یہ میں نے کانسیپٹ آپ کو لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے اب آپ سمجھ گئے۔ اللہ، اگر اس لفظ کو سیپریٹ پڑھنا یخادعون اللہ، رائٹ؟ تو یہ ہماری آسانی کے لیے لگایا گیا کہ ہمیں سمجھ لگ جائے کہ اس الف کو کب پڑھنا ہے، جب اس ورڈ کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم کو سیپریٹ پڑھا جائے گا، دین اس پہ زبر لگا کے پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم اس کو جوائن کریں گے نون کو لام سے، نل۔ اب لام پہ کھڑا زبر ہے، ڈیفینیٹلی یہ سعودی قرآن ہے، اس پہ زبر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ کھڑا زبر ہے، نلو، نلو، 2 کاؤنٹس۔ ہا پہ صرف زبر 1 کاؤنٹ، ہا، ہا، یخادعون اللہ۔ اب سٹریس کہاں کہاں دیا ہے؟ عین پہ، خو پہ، لا پہ، ٹھیک ہے۔ باقی یا پہ بھی سٹریس نہیں ہے، دال پہ بھی نہیں ہے، اور ہا پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ بات۔ یہ فارمولا اگر آپ کو سمجھ لگ گیا کہ میرا سٹریس، میں نے ایک ورڈ پہ سٹریس کس پہ دینا ہے، کون سے پوائنٹ سے سٹریس والے پوائنٹس ہیں، اور باقی وداؤٹ سٹریس ہیں، ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ۔ آگے چلتے ہیں، واو کو لام سے جوائن کریں گے، کیوں؟ کیونکہ لام پہ کون سا سائن آ گیا ہے؟ شدہ والا سائن، ول، 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 لام زبر لا، ول، ول، ول۔ لام کو صرف ایک حرکت دینی ہے، ایک حرکت سے زیادہ نہیں دیں گے، ول۔ اب دال کے ساتھ یا آ گیا، یا پہ دیکھیے یہ سکون کا سائن ہے، یا ساکن سے پہلے آ گئی زیر۔ اب یہ یا ساکن مدہ لیٹر کنسیڈر ہوگا، کیونکہ کون سا یا مدہ لیٹر ہوتا ہے جس سے پہلے دال کے نیچے کیا آتی ہے، جس سے پہلے کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا سے پہلے زیر آ گئی، اب یہ یا مدہ لیٹر ہے۔ اب اس مدہ لیٹر کی وجہ سے دال کو 2 کاؤنٹس دیں گے، ٹھیک ہے۔ والذی، والذی، والذی۔ نون پہ زبر آ گیا، صرف 1 کاؤنٹ، نہ، نہ، والذین، 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 سٹریس دی، والذین۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی بات ٹیکنیکل لگ رہی ہے تو پریویس ویڈیوز واچ کر کے آئیں گے تو پھر اس کی زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی،
क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, सारे के सारे रूल्स बार बार एक्सप्लेन किए गए हैं। हमज़ा पे ज़बर है लेकिन यहाँ पर अलिफ लग गया, जबकि पाकिस्तानी कुरान देखेंगे तो ऐसे खड़ा ज़बर लगा होगा। एक ही बात है, अलिफ लगा दें, खड़ा ज़बर लगा दें, मिकदार सेम, काउंट्स सेम, लंबा कितना करना है सेम। अ अ मीम पे ज़बर अम अम अम। नून के साथ अब आ गया वाव, ठीक है, नून के साथ क्या आ गया वाव, और ये वाव मद्दा लेटर है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गई है। नू नू दो हरकत, नू आमनू आमनू। अब इस अलिफ पे आ गया ये ओ वाला साइन, ठीक है, इसको कहते हैं नल साइन, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स या मैथ पढ़ा हो और उसमें आपने देखा होगा ये अक्सर साइन यूज़ होता है। इसका क्या मतलब होता है, यानी जब फिजिक्स एंड साइंस में साइन आता था तो हमें कहा जाता था कि इस लेटर की या इस क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नल का साइन का पर्पस क्या है कि इस लेटर को नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ वैल्यू की तो बात नहीं हो सकती ना, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ बात करेंगे कि इस अलिफ को नहीं पढ़ना, ठीक है। आमनू नू, आगे देखिए, वाव पे ज़बर वन काउंट, बट मीम के साथ तो अलिफ मद्दा लेटर आ गया। आपको कैसे पता चला, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है। जिस अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, जिस खाली अलिफ से पहले, एम्प्टी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वो अलिफ मद्दा लेटर बन जाता है, ठीक है। म, अब मीम के टू काउंट्स, म व म व म। अब या को खौ से ज्वाइन करेंगे, यख यख वमा यख, दाल ज़बर द, वमा यख द द, वन काउंट। अब ये आ गया वाव साकिन, वाव साकिन से पहले क्या आ गई पेश, ठीक है। ये वाव साकिन है मद्दा लेटर। आपको कैसे पता चला, क्योंकि इस वाव साकिन से पहले दम्मा आ गया, पेश आ गई है। अब वाव साकिन से पहले जब पेश आ गई वो वाव साकिन मद्दा लेटर कहलाएगा। वमा यख्दऊ, नून पे सिर्फ ज़बर वन काउंट, वमा यख्दऊन वमा यख्दऊन वमा यख्दऊन। अब यहाँ पर देखिए, हमज़ा को हम लाम से ज्वाइन करेंगे, इल, और लाम पे ज़बर है लेकिन इसके साथ अलिफ भी आ गया, ये अलिफ मद्दा लेटर है, अलिफ से पहले ज़बर आ गई और डेफिनेटली टू काउंट्स इल्ला, लेकिन हम तो इसको फोर काउंट्स देंगे। क्यों, क्योंकि इस पे ये वेवी लाइन आ गई है। अच्छा जी, ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वेवी लाइन कब आती है। ये एक असूल है, ठीक है। दो तरह की मद्दात होती है मेन मद्दात कुरान पाक में, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, ठीक है। उसके बाद और बहुत मद्दात हैं, मद लाजिम, कलमी मुसक्कल, हरफी मुसक्कल। अगर आप में से बहुत सी तालिबात ऐसी जो पहले पढ़ चुके हैं आपको पता होगा, मद्दात की बहुत सी टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन की, कि ये साइन हमारी आसानी के लिए कुरान पाक में लगाया गया है, क्योंकि हम बार बार मद को अमूमी तौर पे आम लोग रिकग्नाइज नहीं करते, पहचानते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाम के टू काउंट्स की बजाय फोर काउंट्स होंगे। क्यों फोर काउंट्स होंगे, क्योंकि ये मद का साइन आ गया। इल्ला, खींचेंगे चार हरकत, इल्ला। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने सही खींचा है, आप अपनी चार उंगलियां बंद करें, मुट्ठी बंद करें, और ला को पढ़ते हुए आपने एक एक उंगली आहिस्ता आहिस्ता खोलनी है। जितने में आपकी चार उंगलियां खुल जाएं, ला कंप्लीट हो गया है। अब डिपेंड करता है, आप बहुत तेज़ खोलेंगे बच्चे की तरह, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं वो तेज़ तेज़ खोल देते हैं, तो वो जल्दी जल्दी इल्ला, चलो जी, नहीं, आपने इसको टाइम देना है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक फिंगर आपने ओपन करनी है, ठीक है। फोर फिंगर्स आप ओपन कर लें या फोर फिंगर्स बंद कर लें आहिस्ता आहिस्ता, तो ला की मिकदार उतनी ही होती है, ठीक है। इल्ला, आगे देखिए, हमज़ा को नून से ज्वाइन करेंगे और कैसे ये बन जाएगा अन, फा पे सिर्फ पेश वन काउंट, अनफु, सीन पे ज़बर वन काउंट, अनफुस, फुस, अनफुस।
हा को मीम से ज्वाइन करेंगे, हुम अनफुसहुम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो या कह लें मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक जगह पे मैंने इख्फा किया था और मैंने आपसे कहा था कि उसूल है एडवांस लेवल का, जैसे अनफुस अनफुसहुम, ये रूल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ सिंपल ज्वाइनिंग से पढ़ ले, अनफुसहुम, फा पे 1 काउंट, सीन पे 1 काउंट, अनफुसहुम। आगे चलिए, वाव पे ज़बर 1 काउंट, मीम पे ज़बर के साथ अलिफ भी आ गया, अलिफ से पहले ज़बर, मद्दा लेटर, म व म व म व म। स्ट्रेस किस पे आया? माँ पे, वाव पे स्ट्रेस नहीं देना, व म। या को ज्वाइन करेंगे शीन से, यश 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 व म यश। अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ भी मैंने वमा साथ पढ़ा था, यहाँ भी वमा साथ पढ़ा था। अच्छा जी, एक इल्ला भी निगेशन के लिए आता है और माँ भी निगेशन के लिए आता है, व और माँ नहीं, यखदऊना, वो धोखा देते, इल्ला सिवाय, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को। तो वमा भी कभी कभी नहीं के लिए यूज़ होता है कुरान पाक में। तो ये जो कि नहीं के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो मैं साथ साथ चला रही हूँ ताकि लफ्ज़ अजीब सा ना लगे, वमा अलग पढ़ लूँ या शुरून अलग पढ़ लूँ। तो मैं मिला मिला के, चूँकि तिलावत की क्लास है, मैं तर्जुमे की क्लास नहीं है, ठीक है। तिलावत की क्लास में मैं दोनों लफ्ज़ों को मिला मिला के इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि खुदा ना खास्ता हमसे ही बोलते गलती ना हो जाए। देखिए, वमा यश, आइन पे सिर्फ पेश, वमा यशऊ, रॉ पेश वरू, ये आ गया मद्दा लेटर, वमा यशऊरू, नून पे आ गई ज़बर, वमा यशऊरून, न न, ठीक है, ज़बर सिर्फ। अब आपने स्टॉप करना है, आप ज़बर को रिमूव करके यहाँ पे टेम्परेरी सुकून का साइन लगाएंगे क्योंकि आप स्टॉप करें, वमा यशऊरून। अब ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जब भी आयत का आखिरी लफ्ज़ आता है, बहुत से क़ुरा उसको बहुत एक्स्ट्रा लंबा करते हैं, वहाँ भी एक मद है। सुभान अल्लाह, हमारा कुरान पाक में माशाल्लाह बहुत सी मद्दात हैं। यही बात मैं कहती हूँ सबसे कि इसको, इस इल्म को हासिल करें और मोहब्बत से हासिल करें। इतने इन डेप्थ रूल्स हैं कुरान पाक की तिलावत में, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब आपको उन रूल्स की समझ लगती है, फिर आपको पता चलता है कि इमाम काबा जो हैं वो कुरान पाक ऐसा क्यों पढ़ते हैं, वो इसको लंबा क्यों करते हैं, इस पे उनका स्ट्रेस ज़्यादा क्यों है, इस लफ्ज़ पे वो स्ट्रेस क्यों देते हैं, ठीक है। वमा यशऊरून, स्टॉप करेंगे हम। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब दे दिया जाएगा। आज के आयत में फिर वही बात है, मद्दा लेटर। डायरी पे अगर आपने नहीं नोट किया, नोट कर लें। अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर, टू काउंट्स, इसको कहते हैं मद्दा लेटर। और जहाँ पर मद्दा लेटर को 2 की बजाय 4 काउंट्स पढ़ा जाएगा, वो पॉइंट है जहाँ पे वेवी लाइन आ जाएगी। क्या वेवी लाइन की वजह से पढ़े? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे उसूल हो रहा है, वो असूल आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मद मुनफसिल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।